تیر لاسانی ملا ہے۔ خواب اور خواب کی تعبیر کو زندہ کرتے ہیں، بس یہاں سے تقریر شروع ہے۔ خواب اور خواب کی تعبیر کو زندہ کر دے، مردہ تقدیر کو تدبیر سے زندہ کر دے۔ غوث اعظم تیرے خدام کو طاقت وہ ملی، وہ تو چاہے تو تصویر کو زندہ کر دے۔ غوث اعظم تیرے خدام کو طاقت وہ ملی، وہ تو چاہے تو تصویر کو زندہ کر دے۔ علمی شخصیت آپ نے غوث اعظم کی دیکھی، عملی زندگی غوث اعظم کی دیکھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کو معاذ اللہ سنی اتنا بڑھاوا دیتے ہیں، بچوں بہت دھیان سے سننا، سنی اتنا بڑھاوا دیتے ہیں، معاذ اللہ ان کو نبی سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ وہ نمتی ہیں، ولی ہیں، نبی نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے غوث اعظم نبی نہیں ہو سکتے لیکن جانشین نبی ضرور ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی ضرور ہیں۔ اور ولی ایسے ہیں، قسم خدا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، علماء کے اقوال بھی مروی ہیں، محدثین بھی فرماتے ہیں، مقررین بھی کہتے ہیں، تاریخ داں بھی کہتے ہیں، وہ جب تک اپنے ہاتھوں سے کسی ولی کی ولایت کو دستخط نہیں کرتے ہیں اس کو ولایت نہیں ملتی ہے۔ اب ان کے بلوں نے اپنی والدہ کے پاس میں کھڑے ہیں، سرکار غوث اعظم کی ماں ارشاد فرماتی ہے، بیٹے عبد القادر تمہارا بچپنا تھا، جھولے میں تم لیٹے ہوتے تھے، چارپائی پہ تم لیٹے ہوتے تھے، پنگوڑے میں تم ہوتے تھے، ہم بار بار یہ دیکھتے تھے کہ تمہارا وجود غائب ہوتا تھا، کبھی تم آسمان کے چاند میں کھو جاتے تھے، کبھی ہم دن میں دیکھتے ہیں کہ آسمان کے سورج میں تم روپوش ہو جاتے ہو۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، والدہ وہ بچپن کا زمانہ تھا کہ آسمان کے چاند میں میں چھپ جاتا تھا، آج یہ زمانہ ہے کہ بھلے چاند میرے دامن میں چھپے ہوئے، بھلے چاند میرے دامن میں چھپے ہوئے، سورج اس وقت تک نکلتا نہیں ہے جب تک کہ میری بارگاہ میں آ کے سلام نہیں کرتا ہے، چاند اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا ہے جب تک کہ مجھے سلام نہیں کرتا ہے، مہینہ اس وقت تک آتا نہیں ہے جب تک کہ میرے دروازے پر دستک نہیں دے لیتا ہے، سال اس وقت تک آتا نہیں ہے جب تک کہ مجھ پہ اجازت نہیں کام کر لیتا ہے۔ اسی منظر کو دیکھنے کے بعد بریلی کے تاجدار نے کہا، حکم نافذ ہے تیرا، خاتمہ تیرا، شاید تیری، سب میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ۔ ہم نے کہا بچانے کی بات نہ کر میرے بھائی، جب وہ بچانے پہ آتے ہیں تو ایسے ایسوں کو بچا لیتے ہیں اور وہاں سے بچا لیتے ہیں جہاں سے تمہارے فکر و گمان کی منزلیں ختم ہوتی ہیں۔ کہنے والے نے کہا مولانا آج سائنس بچا رہی ہے، آج تو سائنس کا زمانہ ہے، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج تو فزکس کا زمانہ ہے، آج تو سائنس نے ترقی کر لی ہے، سائنس کینسر کا علاج ڈھونڈ رہی ہے، سائنس کا ہاتھ کو کاٹ کر کے الگ کر رہی ہے، مردے کو چیر کر الگ کر رہی ہے، مرنے والے کو بچا رہی ہے، نئی زندگی عطا کر رہی ہے۔ پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، غوث اعظم کیسے بچاتے تھے؟ ہم نے کہا ماضی قریب کی بات، ماضی بعید کی بات نہ کرو، ماضی قریب میں آ کر کے دیکھو۔ آج دنیا کے دنیا کو جس سائنس پہ ناز ہے نا، آؤ امریکہ چلو، امریکہ والوں سے پوچھو تم نے کتنی ترقی کر لی ہے، تو ناسا کے لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے زمین پہ بیٹھے بیٹھے، اگر آسمان پر ہم راکٹ کو بھیجتے ہیں نا، آسمان پہ راکٹ کو بھیجتے ہیں، پہلا راکٹ جو بھیجا گیا تھا جس میں انسانوں کو بھیجا گیا تھا، امریکہ سے بھیجا گیا تھا، ناسا سے بھیجا گیا تھا، اس میں راکٹ میں بٹھایا گیا اور آسمان کی دنیا پہ جب چاند پر بھیجا گیا لوگوں کو، تو دنیا والے یہ کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں، ناسا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس میں بھیج دیا تو آسمان کا بہت سی منزلیں طے کرنے کے بعد میں چاند کے قریب جب بالکل ہمارا راکٹ پہنچتا ہے، جب ہمارا جہاز پہنچتا ہے تو ہماری آنکھیں یہاں کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھ رہی تھی کہ ہمارے کچھ لوگوں کا لباس اسی راکٹ کے اندر، اسی جہاز کے اندر پھٹ گیا تھا، ان کی زندگی کے نالے پڑ گئے تھے، ان کی موت کا صحیح یقینی ہو چکی تھی، لیکن اپنی
साइंस की बुनियाद पर हमने जमीन पर बैठे बैठे लाखों किलोमीटर की दूरी पर जो रॉकेट चल रहा था, जो जहाज चल रहा था, जो चांद की मंजिलों को तय कर रहा था, उसमें बैठने वाले लोगों के जिसका लिबास फट गया था, तो साइंसदान ये कहते हैं जमीन पर बैठे बैठे हमने टेक्निक की बुनियाद पर, हमने साइंस की बुनियाद पर, हमने अपनी फिजिकल थ्योरी की बुनियाद पर, हमने अपने मशीनरी की बुनियाद पर जमीन पे बैठे बैठे उनके लिबास को सिल दिया, उनकी जानें बच गई थी। मैंने कहा तुम आज ये चलन कर रहे हो कि जमीन पे बैठे बैठे हमने रॉकेट में बैठने वालों के जिस्मों को बचा लिया था, जानों को बचा लिया था, तुम आज बता रहे हो। कैसे आसम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल करके बताया, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को पानी से निकाल करके बता दिया था कि तुम 1400 साल के बाद, तुम 700 साल के बाद में लोगों की जिंदगी बचाने का काम करोगे। और ज्यादा उस जमाने में है जब साइंस भी नहीं, और ज्यादा उस जमाने में है जब ये कंप्यूटर भी नहीं है, और ज्यादा उस जमाने में है जब ये टेक्नोलॉजी भी नहीं है। लेकिन वो ज्यादा कहते हैं कि तुम चंद जानों को बचाओगे, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकालूंगा, पूरी बारात बचाऊंगा, पूरी बारात बचाई। और खाली बारात बचाई है, हुक्म सुनो सरकार गौसे आजम का। कहते हैं इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में, मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूँ। मेरा मानने वाला जब मुसीबत में हो वो मुझे पुकारे। और एक जुमला नकल किया है साहिब भजपुरा सरार ने, वो कहते हैं कि गौसे आजम का फरमान है कि दरिंदा सामने हो, शेर सामने हो, चीरने फाड़ने वाला जानवर सामने हो और उसने अपने जबड़े फाड़ दिए हो और मेरे मुरीद को अपने जबड़ों के अंदर दबोच लिया हो, ऐसे नाजुक मौके पर अगर मेरा मुरीद मुझे पुकार लेता है, मैं शेर के जबड़े फाड़ के जबड़े फाड़ करके उसे बचा लेता हूँ। वो बचाने पे आते हैं तो ऐसे बचा लेते हैं। और मियाँ तुम बड़े बड़े वलियों की बात करते हो, उनके घर के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता भी जब आता है, उनके घर के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता भी जब आता है ना, अच्छा कोई कुत्ता वाकई नहीं सुनाऊंगा, हमारे बच्चे मदरसे के अभी ऐसे ही बैठे हैं, उनके घर पे पलने वाला कुत्ता जब सरकार गौसे आजम पनाह का, गौसे आजम का फैजान लेके उठता है, तो फिर वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, फिर वो ये देखता है कि हमारे पीर, समझो, हमारे पीर की बारगाह में रहने वालों पे कोई भौंकता है, कोई काटने को दौड़ रहा है, तो फिर वो कुत्ता भी उसको बख्शता नहीं है। कोई कुत्ता किसी शेर को चीर नहीं सकता, कोई कुत्ता किसी शेर को मार नहीं सकता, लेकिन गौसे आजम का जो कुत्ता हो वो शेर पे भी हमला करता है, वो शेर पे भी हमला करता है। लोग ये कहते हैं यार गौसे आजम की करामतें सुन्नी बयान करते हैं, अरे हम करामतें ना बयान करेंगे तो फिर कौन बयान करेगा, वलियों को पावर ना दिखाएंगे तो फिर कौन बयान करेगा। लोग कहते हैं गौसे आजम की बारगाह, गौसे आजम को तो मुर्गा पकाते हैं सुन्नी, बिरयानी बनाते सुन्नी। हमने कहा जालिम, तुमने खाली उनका मुर्गा देखा, उनका चिल्ला नहीं देखा, तुमने खाली उनका मुर्गा देखा, उनकी इबादत नहीं देखी, तुमने पीर की खाली गाड़ी देखी, उनकी इबादत तहज्जुद गुजारी नहीं देखी। आज भी होता है, लोग पीर साहब पे निगाह रखते हैं और गाड़ी बहुत शानदार है, लोग पीर साहब निगाह रखते हैं, कपड़ा बहुत शानदार है, लोग पीर साहब पे निगाह रखते हैं, नहीं ये मामला तो बहुत शानदार है। तुमने कभी पीर की जिंदगी में झांक करके देखा कि रात भर इबादत कैसे करते हैं, लोगों की हालत दवाई कैसे करते हैं? तुमने कभी ये झांक करके देखा कि पीर खाना कैसा खाते हैं? तुमने कभी झांक करके देखा कि अल्लाह वाला रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत कैसे करता है? जब सरकार गौसे आजम ने 20-22 साल जंगलों में रह करके सूखे पत्ते जमाए हैं, तब जाके अपनी विलायत में शोहरत मिला, तब जाके उन्होंने बताया है कि मैं मुर्दे जिलाता हूँ, तब जाके उन्होंने बताया है कि मैं अपने मानने वालों को बचाता हूँ। है तो माता जात वली, है तो माता जात वली, लेकिन
आपको अपनी विलायत का एहसास कब हुआ? तो कहते हैं हमको अपनी विलायत का एहसास उस वक्त हो गया किसी ने पूछा सरकार गौसे आजम से, हजरत आप वली हैं, आपको पता कब चला? तो सरकार गौसे आजम कहते हैं मैं मदरसे में जाता था पढ़ने के लिए, और जब रास्ते में चलता था भीड़ भाड़ होती थी तो दो फरिश्ते मेरे दाएं बाएं आते थे और कहते थे इस सहूले वली अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ दो। मादरदार वली है, जो है मादरदार वली है। कसम खुदा की जब बचाने पे आते हैं तो फिर मुरीद को जड़ों से भी बचा लेते हैं, लेकिन मुरीद भी होना चाहिए, मुरीद भी होना चाहिए। मुरीद चाहे जैसा हो, एक बात और बता दें, अच्छा मुरीद अगर है तो फिर तो सोने की सुहागा है, और मुरीद चाहे जैसा हो लेकिन नाम लेवा है, वफादार है, तो फिर कहते हैं कि अल्लाह ने मुझसे वादा कर दिया है कि तुम्हारे एक एक मुरीद को जब तक बख्शूंगा नहीं तब तक, तुम्हारे एक एक मुरीद को जब तक बख्शूंगा नहीं, गौसे आजम तुम्हारे एक एक मुरीद को जब तक बख्शूंगा, तुम्हारे एक एक मुरीद को बख्शूंगा, सरदार गौसे आजम कहते हैं जब तक तू मेरे हर मुरीद को बख्शेगा नहीं तब तक मैं जन्नत में जाऊंगा नहीं। तो रब ने भी वादा फरमा लिया तुम्हारा हर मुरीद जो मरेगा वो तौबा करके मरेगा, जो भी मरेगा इंतकाल करेगा वो तौबा करके इंतकाल करेगा। और तौबा करने वालों के लिए हदीस पाक में जुमला आता है, नबी करीम इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन नाज़िम वाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई बुराई नहीं किया, कोई पाप ही नहीं किया, कोई खता ही नहीं की, कोई नफुश ही नहीं की। तारीफ शख्सा है, हैरान है। 2-4 मिनट और आपको लूंगा, 10 बजे से पहले पहले इस प्रोग्राम को खत्म होना है। 2-4 मिनट और आपको लेना चाहूंगा, सबक देना। गौसे आजम की निगाह वो है वो जिसको चाहते हैं गली बना देते हैं और जिसकी चाहते हैं विलायत सब कर देते हैं, छीन लेते हैं। अदब करने वाला हो तो फिर नमाजने पे आते हैं तो चोर को वली बनाते हैं, नमाजने पे आते हैं तो फिर चोर को वली बनाते हैं। बैठे ना चोर, सुबह हो गई, दरवाजा खटखटा है, हज़रत खलील अलैहिस्सलाम आए, हज़रत सुबह का वक्त है, फलां इलाके के कुतुब इंतकाल कर रहे हैं, वली दीजिए, कुतुब दीजिए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया सुबह होने दो, अभी तो वक्त बाकी है, सुबह इंतजाम कर दिया जाए। कहने लगे हज़रत अगर कुतुब ना हुआ तो इलाका गर्क हो सकता है, इतनी देर में अगर इलाका तबाह बर्बाद हो जाए तब जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार गौसे आजम ने फरमाया तुम दाल मस्जिद चढ़ते हो, कभी बैठा उसी को पकड़ लो, उसी को लेकर जाओ। पहुंचे और पहुंच के देखा निकलो बाहर, कहने लगे मैं तो चोर हूँ, कुतुब नहीं हूँ, वली नहीं हूँ, गौस नहीं हूँ। तो कहते हैं जब चोर था तब था, निगाहे गौस की है वली बना के छोड़ा, निगाहे गौसे आजम की है वली बना के छोड़ा है कि नहीं? वो जिसे चाहते हैं कुतुब बना देते हैं। और अगर उनके दरबार का अदब ना कर पाए लोग, कोई उनके दरबार से ऊंची उड़ान उठता हुआ जाए, ऊंची उड़ान तो निगाह उठाते हैं और नीचे गिराते हैं तो विलायत की मंजिल से आम इंसान की सूरत को जमीन पर गिरता है। जिसे चाहते हैं वली बना दे, जिसे चाहे कुतुबियत दे दे, जिसे चाहे अफतालियत दे दे, जिसे चाहे औकात बना दे। अल्लाह ने उनको ये पावर और इख्तियार दिया है कि तुम जिसे चाहो, जो चाहो वो बना दो। तो आज हम सारे सुन्नी मुसलमान काजी सरकार की चौखट पर बैठ करके गौसे आजम की बारगाह में ईसा डालते हैं, सरकार बद सही चोर सही मुजरिमों नकारा सही है वो कैसा ही सही है, पर करीमा तेरा एक निगाह नाक डाले टूटी हुई मंदिर बना ले, एक निगाह नाक डाले। हम गुलामों की किस्मतें संभाले, किस्मतें संभाल देते हैं। अच्छा आपने वाकया सुना होगा, वो वाकया 2 जुमलों में सुनिए। एक मुरीद ने कहा था ना कि हजरत मेरे यहाँ दावत है, कबूल कर लीजिए। तो सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया मैं दावत करना चाहता हूँ। अच्छा कौन ऐसा मुरीद है जो ये नहीं चाहता मेरे की 10 मिनट के लिए मेरे घर पे आ जाए? कौन ऐसा मुरीद है जो ये नहीं चाहता मेरे पीर 5 मिनट के लिए कदम रख दे? कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हजरत मेरे दरवाजे के पास अंदर कदम रख दे, फिर चाहे तशरीफ ले जाए, सबकी ये ख्वाहिश होती है। मेरे पीर
शहीद उवैस मुस्तफा बाकी साहब तगड़ा दामद जिले वाली जिस घड़ी से गुजर जाते हैं अपने आप मजमा हो जाता है। शाहरात से गुजर जाते हैं, शाहरात पे अपने आप मजमा हो जाता है। सौदा से गुजर जाते हैं, न जाने कौन है जो बता देता है, मजमा अपने आप बेकरार हो जाता है। लोग वहां पे आ जाते हैं, मैं बताऊं कौन बता देता है, कोई नहीं बताता, रब्बे काबा बता देता है, रब्बे काबा बता देता है। मेरा गली इधर उधर कर रहा है, फूल होता है तो खुशबू उड़ के पहुंच जाती है, फूल होता है तो खुशबू अपने आप उड़ के पहुंच जाती है। अतर की डबिया से अतर ही निकलता है, बेशक अतर की डबिया से अतर ही निकलता है। मजमा वहां हो जाता है और सबकी ख्वाहिश होती है 2 मिनट के लिए मेरे घर में, 1 मिनट के लिए मेरे घर में। और कोई अगर ना भी कर पाए ना तो कहता है कम से कम सरकार के चेहरे की ज़ियारत कर ले। और अगर लोग ज़ियारत नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारे शब्बीर भाई ताबिश भाई चंदेरी से चले आए हैं ज़ियारत करने के लिए, ज़ियारत नहीं हो पाई है, बेकरार हो गए। बहुत से हज़ारों लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए, न पानी दम कराना है, न अगरबत्ती दम कराना है, न कोई और काम है, बस सरकार को चेहरा देखना, ज़ियारत होना। लोग कहने लगे, एक आदमी आया कहने लगा हज़रत मेरे यहाँ दावत पूरी फरमा लीजिए। का दावत कब है? रमजान का महीना है। लोग उसने कहा हज़रत शाम में अफ्तार मेरे यहाँ कीजिएगा। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया ठीक है अफ्तार हम तुम्हारे यहाँ करेंगे। एक साथ थोड़ी देर के बाद में हो रहा है, कहने लगे अफ्तार मेरे यहाँ कीजिएगा, सरकार अर्जी कबूल फरमा ले। गौसे आज़म को ना कहने की आदत ही नहीं है, और जो गौसे आज़म के नक्शे कदम पे होता है वो ना तो कहता ही नहीं है। ये तो सादात के नाम है भाई, तो सादात के नाम है। इनके घर की आदत ना कहना है ही नहीं। पैसे मांगो तो लो, चप्पल मांगो तो लो, जूता मांगो तो लो, कपड़े मांगे तो लो, तारीफ मांगो तो लो, दुआ कराओ तो लो, परेशानी बताओ तो वो परेशानी फौरन हल। लेकिन जो भी मांगो दिया जाता है। सरकार ने इरशाद फरमाया आज तुम लोग सबके सब आए जा रहे हो, ठीक है तुम्हारे यहाँ दावत कबूल, दूसरा आया उसके यहाँ कबूल, तीसरा आया उसके यहाँ कबूल, तकरीबन 70-72 मुरीदों ने दावत की, सबके यहाँ कबूल। शाम का वक्त हुआ, सरकार गौसे आज़म एक मुरीद के यहाँ पहुंचे थे। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ एक मुरीद के यहाँ पहुंचे थे, मैं ये नहीं कह सकता। उस मुरीद ने कहा सुबह फजर की अजान हुई, रात में दावत हुई, सुबह फजर की अजान हुई, फजर की अजान पे सब लोग आ गए। अब वो मुरीद अपनी किस्मत पे नाज कर रहा था, मेरे पीर मेरे घर पे आए थे, उसने मैं आम में पुकार देखा, बोला वो आज मैं अपनी किस्मत पे नाज कर रहा हूँ, इसलिए बगदाद के पीर मेरे घर आए, गौसे आज़म मेरे घर पे आए थे। तो दूसरे साहब जो कहते हैं यार कैसी बात कर रहे हो, गौसे आज़म तो शाम में मेरे यहाँ थे। तीसरे कहने लगे कितने बड़ा झूठ बोलते हो, कितना बड़ा झूठ है, गौसे आज़म तो मेरे यहाँ थे। चौथे और खड़े हो गए, कहने लगे कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो, गौसे आज़म तो मेरे यहाँ थे। पांचवा कहने लगा मेरे यहाँ थे। 70-72 खड़े हो गए। अब सबके सब परेशान, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, ये भी झूठ नहीं बोल सकता, ये नमाजी है, ये गौसे आज़म का मुरीद है, ये भी झूठ नहीं बोल सकता, ये गौसे आज़म के घर का चौकीदार है, ये भी झूठ नहीं बोल सकता, ये गौसे आज़म को पानी पिलाने वाला है, ये भी झूठ नहीं बोल सकता, ये भी उनका वफादार गुलाम है, ये भी झूठ नहीं बोल सकता। सब परेशान। आखिर खादिम से मुलाकात की, खादिम साहब आप ही बताओ गौसे आज़म हमारे यहाँ नहीं गए थे, हम आए थे दावत देने के लिए कि नहीं? हाँ आए थे, मेरे यहाँ नहीं गए थे। क्या बताएं तुम्हारे यहाँ गए थे या नहीं गए थे? गौसे आज़म तो अपने मेहमानों के साथ अपनी खानकाह में थे, अपनी खानकाह में थे। कहने लगा इसका मतलब हम सब झूठे। कहने लगा गौसे आज़म का जो मुरीद हो वो झूठ नहीं बोलता, गौसे आज़म का मुरीद झूठ नहीं बोलता, आम आदमी से भी नहीं बोलता और खास आदमी से भी नहीं बोलता। जो गौसे आज़म हो, गौसे आज़म का मुरीद हो, वो झूठ नहीं बोलता। चलो अपने पीरी से मालूम कर लेते हैं। अब अकेले तो हिम्मत नहीं थी, वे जाते कहते कि सरकार आप मेरे यहाँ आए थे लोग, और ये सब कह रहे मेरे यहाँ आए थे, सब के सब साथ मिल गए। और जाकर के कहा हजरत क्या आप हमारे यहाँ नहीं आए थे अफ्तार में शाम के वक्त में? कहने लगा हाँ हमारे यहाँ भी आए थे, हमारे यहाँ नहीं आए थे, तुम्हारे यहाँ भी आए थे, हमारे यहाँ नहीं आए थे, तुम्हारे यहाँ भी आए थे। हजरत खादिम कह रहा आप खानकाही में थे, कहाँ यहाँ भी थे। 70-72 एक तरफ, खादिम साहब भी सच्चे, गौसे आज़म भी सच्चे। क्या हजरत बात समझ में नहीं आती?
मुरीद बनो। पीर को पीर माना है तो फिर पीर मानो। ऐसा नहीं कि पीर माना हो ऐप भी तलाश करो, पीर माना बुराइयां भी करो, पीर भी माना गालियां भी दो, पीर भी माना बुरा भला भी कहो। जब मान लिया तो मान लिया। अब गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, सब मोहब्बत करते हो? हाँ मोहब्बत करते हैं। इरशाद फरमाया, देखो सामने दरख्त है। कहाँ? हाँ है। अच्छा जाओ दरख्त के नीचे सब खड़े हो जाओ। सबके सब खड़े हो गए। अब रवायतें दो हैं गौसे आजम की, ये दो रवायतें। एक साहब कहते हैं कि गौसे आजम ने दरख्त की तरफ इशारा फरमाया कि दरख्त के पास में चले जाओ, खड़े हो जाओ, दरख्त की पत्तियों को देखो कोई दिखता है। और एक रवायत ये सबके हाथों में आईना दिया, शीशा दिया कि देखो कोई दिखता है। कहा सब में आपका जलवा दिखता है। दरख्त को देखो कोई दिखता है। क्या दरख्त की हर शाख पे आप है, हर डाली पे आप है, हर पत्ती पे आप है, हर शाख पे आप है। देखो अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले हो तो जैसे इस दरख्त की हर पत्ती पे गौसे आजम का जलवा दिख रहा है, घर में जाओगे इसी तरीके से मेरा जलवा अपने घर में भी पाओगे। वक्त एक, टाइम एक, घंटा एक, मुरीद 70-72, मगर पहुंचे सबके यहाँ। बोलो मोहब्बत पहुंचे, मगर पहुंचे सबके यहाँ। आखिरी जुमला देकर के जा रहा हूं, अगर गौसे आजम 70-72 मुरीदों के यहाँ एक वक्त में पहुंच सकते हैं तो गौसे आजम के आका मुस्तफा जाना रहमत हजारों करोड़ों मुसलमानों की कब्र में बैठ वक्त आ सकते हैं। अगर गौसे आजम की ये करामत है तो ये मेरे मुस्तफा का मुर्जा है जो कयामत तक कायम रहेगा। हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक अपना जलवे रहमत दिखाते हैं मुस्तफा, अपना चेहरे नूर दिखाते हैं मुस्तफा। दुआ कीजिए मौला हमको और आप सबको सरकार गौसे आजम की और हम सबको अपने पीर और मुर्शिद की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, इनके साए में जिलाए, इनके साए में उठाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।